थोड़ा खींच लो जरा। हाँ पहली वाले तोड़ना नहीं, ये मुझे खुल्लूगा ही, इतना जल्दी खुल्लूगा। चाबी दे दो यार ये दे विच कैंची तो ही है कि खोलो कटो नहीं तोड़ सकते। परले देश वाले तोड़ते होंगे। सिर्फ कल्ले तुसी फोकस करो ना। क्यों क्या तुसी कल्ले ने रिबन कटना है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਟੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਟ ਸੀ धक्का मारने लगे ना मुंडे ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਧੱਕਾ टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए ना, कल्ले वही खोलूगे ਕਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਓਏ ਉਹ ਲਿਆ ਬੱਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤਾਂ जे टूट गया फिर डबल नीक लगना है। ਸਿੰਗਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ YouTube ਖੋਲ ਲੈ तुसी नहीं ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ कटो ਹਾਰਡਲੀ ਹੋਊਗਾ ਪਤਲਾ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ बेइज्जती हो रही जीजू, ਸਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ बेइज्जती हुई है। बेइज्जती करते हो ओहो लेकर आई रहे हो ਓਏ ਅੱਜ ਕਰੋ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ जस्ता वाले दिया के तोड़े बड़ा ऑलरेडी बंद ही है। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ भैया को बड़ा दे चलो कर लो ट्राई सारे ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ अरे टूटना नहीं चाहिए बस ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ अब मैं खोल के दिखाता फिर ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਲਿਓ तुसी कटना ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ जे ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟੀ मैं ਬੈਠਾ जे मैं डब्बी खोली फिर दूसरा नहीं लगूगा। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟੀ ਬੈਠਾ सिंगल सुभाव मान जाओगे। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੇ भाजी बैठना करो इधर नु ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਲਿਆ ਸਿੰਗਲ ਨੇਗ मैं खोलना वो खोलेंगे खोलो 25000 ਥੱਲੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਆ ਲਿਆ ਸਿੰਗਲ ਨੇਗ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਡੱਬੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆ। ਖੋਲਤੀ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੇਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਲਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਕ ਦਿਓ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਨੇਕ ਲੈ ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਸੋਕੀ ਥੋੜੀ ਭੈਣ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ। भाई थोड़ा ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀ। नहीं भैया ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲਿਓ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਿਓਗੇ ਡਾਲਰ ਨਾ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਨਾ ਭੈਣ ਭੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਭੈਣ ਆਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੀਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਕਮਾਓ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਜੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੰਗ ਤੋਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸੋ ਚੱਲਣੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਣੇ ਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਾਲੇ ਡੱਬੀ ਦੇਸੀ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲੇ ਡੱਬੀ ਦੇਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਚੀਜੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਚ ਅੰਦਰ ਆਉਂਗੇ ਡਾਲਰ ਡੂਲਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਰਹੋ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ भाजी भाई रिबन कटिंग ਕਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਤੇ Ribbon cutting। ਪੈਸੇ ਚ ਵਾ ਪੈਸੇ ਆਂਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦਵਾਂਗੇ ਰੁਪਈਏ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਡਾਲਰ ਬੋਲੋ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੋਗੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ
ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀਜੂ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਧਰ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਫੇਰੇ ਤੇ ਰੀਬਨ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਿਬਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਭੈਣ ਤੇ ਜਾਓ ਰਿਬਨ ਕਟਾ ਕੇ ਭੈਣ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਅਰੇ ਜੀਜੂ ਨਾ ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ 15 ਮਿੰਟ ਫੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰੇ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀਜੂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਇਓ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁਣ ਗਏ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਕੱਟਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀ ਅੰਕਲ उधर पीछे हो जा करो करो मैम करियो कंटिन्यू करते रहो अपना ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਮੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਉਧਰ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਸਰਿਆ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਨੇਕ ਨੇ ਕੰਦਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਬਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣਾ ਸੀ ਕਟਾਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜੀਜੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਦੇਖ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਤਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਚਲੋ पेमेंट नहीं बाकी साडी अंदर बिठाना इन्होंने स्टेज पे रुके रुके एक मिनट ਭਾਈ ਦਾੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ तो हेलो जी राम राम जी, लाइफ ऑफ फ्री का व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो यहाँ पे एक नई वीडियो स्टार्ट हो गई थी और स्टार्टिंग में हमने रिबन वगैरह और मिनती थी जो वो कर ली थी और इनको ये चीज़ें नहीं पता थी। जो रिबन का तो पता था, मिनती वगैरह का नहीं पता था कि भाई मिनती वगैरह भी कुछ होती है। तो बस यहाँ पे जो बहन थी उसकी एंट्री हो चुकी थी। अब अंदर है जो इनकी पहले एंगेजमेंट होगी और उसके बाद है जो फेरियाँ का फंक्शन है वो करवाया जाएगा। बस दोनों चारों भाई हैं जो हमारे, उन्होंने पकड़ रखा है। और यहाँ पे इतना इमोशनल मोमेंट था भाई, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। आप सबको पता है जब एक लड़की की शादी होती है ना तो ये दिन उसके लिए सबसे स्पेशल भी होता है और एक थोड़ा दुख भरा भी होता है, क्योंकि विदाई के टाइम लड़की इतनी रोती है। पर इस दिन के लिए वो बहुत इंतज़ार भी करती है और बहुत सारे सपने लेके भी मतलब सपने भी संजोती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरी बहन की ज़िंदगी में मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ आए, ठीक है ना। और काफ़ी बेस्ट कपल है ये, काफ़ी सुंदर लग रही थी मेरी बहन भी और जीजू भी, मतलब दोनों ही सुंदर लग रहे थे। और आप लोग भी ज़रूर बताइए कि इनकी जोड़ी आपको कैसी लगी। और मतलब ये इतनी रोई थी विदाई पे, इतनी रोई थी। और देखो बहुत स्पेशल डे होता है, इसने इंजॉय भी इतना ही किया स्टार्टिंग में, पर बस जब विदाई का टाइम आता है ना, जब माँ बाप से, छोटे छोटे भाई बहनों से जब दूर होती है एक बहन, तो मतलब दुख भी इतना ही होता है कि बहुत ज़्यादा। और मतलब किसी की विदाई हम खुद देखते हैं ना, जैसे हमारी खुद की विदाई होती है, हमें इतना नहीं पता होता। और जिस टाइम हम किसी की विदाई देखते हैं रिलेशन में से तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जिस टाइम ये गई थी ना, मैं इतनी रोई भाई, बाद में भी मेरे मतलब मामी और मेरे आँखों में पानी आ गया था। तो बस यहाँ पे इनकी जो एंगेजमेंट थी, रिंग सेरेमनी ला लो, वो हो चुकी थी। और बस यहाँ पे जो इनका शगुन डालना होता हमें वो डाल रहे थे। और मेरी साड़ी ज़रूर बताइए भाई कैसी लगी, उम्मीद करूँगी सबको पसंद आई होगी। मेहंदी कलर, ये डार्क मेहंदी कलर था और इसका ब्लाउज कंट्रास्ट में था और मुझे भी बहुत प्यारी लग रही थी ये। तो दक्ष घर पे रह गया था, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग के व्लॉग में, और ऋषभ मेरे साथ में आ गया था।
तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि अकेले मैं फ़ोटो क्या खिंचाऊंगी। एक तो ये पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ा था, क्योंकि ये इतनी अपनी मस्ती में इतना मगन था कि मतलब खान पीन से, घूमने फिरने से, मतलब बच्चे परेशान नहीं करते, पर थोड़ा हम माँ बाप को ही जाता है कि बाहर ना निकल जाए, एक दूसरे शहर में, अनजान शहर में थोड़ा होता ही है। और मैं इसको पकड़ पकड़ के रख रही थी बिल्कुल बड़ी मुश्किल से। तो बस यहाँ पे जो इनका शगुन है वो डाल देंगे और फिर अपना जो खाना वगैरह वो खावांगे। और विदाई का है, जो विदाई की क्लिप नहीं निकल पाई थी क्योंकि बिल्कुल लेट हो गए थे मामे। और नीचे जो होटल से बाहर निकल के का पोर्शन है वहाँ पे लाइटिंग थी नहीं, अंधेरा था, इस करके ना फिर वहाँ पे वीडियो बन ही नहीं पाई भाई। और विदाई के टाइम में आपको पता है कि सारे इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम में, थोड़ा हाँ ये रहता है कि भाई नहीं छोड़ो, बस जो है उसी में बिजी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ थोड़ी ही मैंने जीजू के साथ में हंसी मजाक भी किया और बस यहाँ पे जो शगुन है वो डाल दिया, फोटो वगैरह हुई, वीडियो वगैरह हुई। और उम्मीद करूँगी ये व्लॉग पसंद आएगा। अब इसके बाद सारे स्टडी ही व्लॉग आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि स्टडी व्लॉग कब से आने स्टार्ट होंगे। देखो जो स्टडी करते हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद आपको डेली वीडियो जो अपना रूटीन का व्लॉग है वही देखने को मिलेगा। उम्मीद करूँगी कि इस व्लॉग को भी आप इतना ही प्यार दोगे जितना पीछे वाले को दिया है। तो बस यहाँ पे इनकी फैमिली, जो जीजू और की फैमिली थी वो खड़ी थी, हमारी फैमिली थी इस साइड खड़ी थी। तो बस ये नानी माँ थी और अब आगे थे भैया हम फेरा का फंक्शन पे, जो बाहर मंडप सजा रखा था। और बस यहाँ पे जो हमारा फेरों का प्रोग्राम था वो शुरू हो गया था। और यहाँ पे अपनी जो गांव की लेडीज होती ना वो सीटने दिया करें, पर हमारी तरफ से मतलब कम ही जा रहे थे, नानी और जा रही थी तो उन्हें थी सीटने देने थे वही दे रही थी, बल्कि नानी और गुस्सा करी थी कि हमने तो कुछ करना ही नहीं आंदा। और वाकई नहीं, हमें पता भी नहीं आजकल के जो जनरेशन है कि कुकर सीटने दिया करें, किस तरीका तक गीत गाए जावे हैं। तो नानी और उरे सीटने देने लग रही थी और थोड़ी उरे की ब्लर हो रही वही वीडियो, क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही थी, धूप की वजह से साफ नहीं निकलन पाई। देख कैमरा में आपको दिख रहा होगा, मतलब वाइटनेस सी ज़्यादा हो रही है इस करके ना। और बस यहाँ पे जो फेरा का फंक्शन है वो चला था। अब मतलब सारे मंत्र वगैरह पढ़ लिए थे, बस अब जो फेरे हैं ये बंधन, मतलब यहाँ आके ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे के हवाले हमारी ज़िंदगी को सौंप देते हैं। वो जैसा बोलेगे हम वैसा ही करते हैं। उनके परिवार में हम एडजस्ट नहीं भी होना चाहते, हमें होना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज हैं और हमारी भाई मतलब शुरू से ही चलती आई है। अब तो देखो बहुत सारी चेंजिंग हो गई है, प्रेशर नहीं रहा है, पर फिर भी बहुत सारी फैमिली आज भी ऐसी ही उसी युग में जी रही हैं कि बहू तो बहू होती है, वो कभी बेटी नहीं बन सकती, या फिर सास तो सास ही होती है, कभी माँ नहीं बन सकती। ये है कि भाई हमें अपना रिश्ता चलाना है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अपने आप को थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। और जब तक हम मतलब उस फैमिली को खुद की फैमिली नहीं समझेंगे ना, तब तक भाई हम भी खुद भी वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगी मैं आप लोग एडजस्ट करना सीखो, सबसे बड़ी तो लीजिए भाई। मामे अंदर रूम में आ गए थे क्योंकि मिनती मानती मन्ना कर दी थी और फेरे फारे भी हो लिए थे, इस करके नहीं माम कपड़े चेंज करने आ गए थे क्योंकि परेशान ज़्यादा हो गए थे। आपने पता है कि साड़ी और लहंगा उसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होंगे, और लाइटिंग भी कम है। पता नहीं मैंने फेरिया की वीडियो कैसी बनी कैसी नहीं, या मेरी वह थी कैमरामैन, या मेरी कैमरामैन थी भाई मौसी की लड़की, और बेरा ने किसी बनाई वीडियो बहुत अच्छी, देखूंगी किसी बनाई है। बाकी आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर दियो भी व्लॉग ने, और व्लॉग आंदे रहेंगे क्योंकि थोड़े ही लेट तो चलेंगे व्लॉग, कई दिन में व्लॉग डालना नहीं पाती इस करके ने। बाकी अपना पूरा मज़ा आवेगा पंजाब की शादी देख कर, क्योंकि हमारे कई चीज़ों में है तो इस करके ने। तो ज़रूर देखियो भाई और ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में किसा लग गया, ठीक है। ये बस मामे थोड़े हल्के हल्के रेडी हो लिए, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि माम ताम जाम करके भाई 3-4 दिन हो गए छिक लिए जमा। तो ये मैंने सोचा कि बस कपड़े चेंज कर लिया क्योंकि विदाई का टाइम हो गया, उसका विदाई करेंगे तो फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे, ठीक है। तो संगरूर था भाई ये फंक्शन जो कर किया था, और मामा ने गाँव में भी कर की थी पार्टी। उससे पहले दिन भी मतलब सिस्टम वो था मेहंदी वाला, उस दिन भी मतलब पूरा तकड़ा काम कर किया था इस करके ने। तो चलिए जी अब अपने घर जाकर मिलेंगे, जो विदाई वाला है वो दिखा देंगे अगर हम ऊपर गए तो, क्योंकि हमारा थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। और कपड़े वगैरह भी हमने पैक करने की, सारा सामान हमारा बिल्कुल देख लो आप लोग, सारा मतलब ऊपर तरह खिंडा पड़ा है। तो मौसी बेटी पहले हमारे सारे कपड़े डालेंगे और फिर जाकर हम ऊपर जाएंगे। तो चलिए भाई फिर मिलूँ आपसे, ठीक है।